Hello dear friends, today I am going to discuss about the cell junction. So what is the cell junction? So cell junction are the specialized structure present on the cell membrane that provide the structural support, facilitate intracellular communication and maintain the tissue homeostasis. Or we can say that the cell junction क्या है is the एक specific structures है that present on the surface of the cell membrane. वो क्या कर रहा है that giving the facilitating the support and it maintain the intracellular communications and maintain the homeostasis. So in simple language we can say the cell junction is the connection between the neighboring cells and connection between the cell and extracellular matrix. It is also called the cell membrane junctions, or we can say it is the point on the cell where the cell connect with the another cell, so we can say it is the cellular junctions. So let's start the discuss about the detail about the cell junctions in the detail. So cell junction are classified into three types. So what are the three types of the cellular junctions? First one, that is the occluding junction. Second one is the communicating junction, and third one is the anchoring junction. So there are the three basically cell junctions जो हमारी ईच एंड एवरी जो हमारे मोस्टली सेल्स के अंदर प्रेजेंट है ओवरऑल सेल्स के अंदर. तो ऑक्लूडिंग जंक्शन है, कम्युनिकेशन जंक्शन है, एंड थर्ड वन इज द एंकरिंग जंक्शन है. तो first of all, occluding junction. The occluding junction, the cell junction which prevent the intracellular exchange of substance are called the occluding junction. तो ऐसा सेल जंक्शन जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, जो इन सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट है इंटरसेलुलर एक्सचेंज जो कंपोनेंट्स हैं जो या वी कैन से फ्लूइड है उसको एक्सचेंज होने से प्रिवेंट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं occluding junctions. Occluding junction we can say these are the very tight junction type of this, because in this junction have no any chance of the exchange of the fluids. So this junction prevent the movement of ions and molecules from one cell to another cell. The tight junctions belong to this category. तो जो टाइट जंक्शन है वो किस कैटेगरी आता है, occluding junction के अंदर, जो इसको हमने इंक्लूड किया गया दैट इज द टाइट जंक्शन. तो इस टाइट जंक्शन के अंदर डिफरेंट जो हैं इसमें एग्जांपल्स भी हैं. तो टाइट जंक्शन इज द intercellular occluding junction that prevent the passage of large molecules. The large molecules cannot be passed from this type of junction. It is also called zonula occludens we can say. So it is the regions where the cell membrane of the adjacent cells fuse together firmly. तो यहाँ ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहाँ पे सेल्स के बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं या वी कैन से टाइटली पैक्ड हैं और वहाँ से हैव द 0% चांस ऑफ द exchange of the fluids, we can say exchange of the molecules from one cell to another cells or from cell to the extracellular compartments. So we can say this is the tight junction. So this type of junction is present in the apical membranes, we can say marginal epitheliums. जो जितने भी apical membrane है, marginal epithelium है जो कम्युनिकेट कर रही है आउटर सरफेस ऑफ द केविटी वी कैन से, तो वहाँ जो प्रेजेंट जो जंक्शंस है वो कैसे हैं, टाइट जंक्शन है. तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स इन द इंटरस्टिशियल म्यूकोसा एंड वॉल ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड कैपिलरी वॉल एंड कोरोइड प्लेक्सस, इन सभी के अंदर जो प्रेजेंट कौन से हैं जंक्शन, दैट इज द टाइट जंक्शन जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ये सारे. तो ये टाइट जंक्शंस क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में जो हम बात करें प्रेजेंट है टाइट जंक्शन, ये सारे. तो ये क्या कर रहे हैं, दे फ्यूज टुगेदर एंड मेकिंग द सरफेस वेरी स्टिफ सरफेस. सो क्या है, यहाँ से फ्लूइड जो है वो पास नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टाइट जंक्शन. फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन, इट गिविंग द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी जिसमें क्या है, गेट फंक्शन, द टाइट junctions form a selective barrier for the small molecules and the total barrier for the large molecules. तो यहाँ से सेलेक्टिव परमेबिलिटीज दे रहा है, जिस पर हमने सेल्स के अंदर डिस्कस किया था, तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी मेम्ब्रेन है, तो इसी वजह से गेट फंक्शंस है उसके अंदर जिसमें क्या है, टाइट जंक्शंस फॉर्म द सेलेक्टिव बैरियर फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड द टोटल बैरियर फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल. तो लार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी पास फ्रॉम दिस टाइट जंक्शन और वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन बी पास, जिसे हम कह सकते हो, तो इसको हम क्या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स बोलते हैं. तो देयर आर द टू फंक्शन है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. सेकंड क्या है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. थर्ड वन इज द फेंसिंग फंक्शन. टाइट जंक्शन प्रिवेंट द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स
जैसे हम बात करें क्या है लार्ज मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स के अंदर क्या है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड थस एक्ट टू एज फेंस। तो यहाँ पे क्या है ये मॉलिक्यूल जो है इसमें मूवमेंट नहीं हो सकते, टाइट जंक्शन प्रिवेंट कर रहा है लार्जर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स को यहाँ पे। उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर, द टाइट जंक्शन इज द कैपिलरी फॉर्म द blood brain barrier which prevent the entrance of many substance from the capillary blood into ब्रेन टिश्यूज़। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कर रहा है, ये भी एक टाइट जंक्शन है, यहाँ एक कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है प्रिवेंट कर रहा है एंट्रेंस ऑफ मैनी सब्सटेंस फ्रॉम द कैपिलरी ब्लड इनटू द ब्रेन टिश्यूज। तो कोई भी किसी भी टाइप का जो हम बात करें जो ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है हमारे सेरेब्रम पोर्शन के अंदर, वहाँ से ब्लड जो है टिश्यूज़ के अंदर क्या है वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ प्रेजेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ही क्या है जो हम बात करें जो ड्रग्स हैं तो उन जो मेडिकेशंस हैं वो क्या है ट्रांसफ़र नहीं होते जो ब्लड से हमारे ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, जिससे कि नार्कोटिक इफेक्ट उनका नहीं आता। तो जो ड्रग्स क्रॉस हो जाती है वो उन ड्रग्स हम क्या बोलते हैं दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स दे गिविंग द सम नार्कोटिक इफेक्ट जो है सडेशन कॉज करेंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे क्या है एक तरह का टाइट जंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है गैप जंक्शन, सेकंड जो है जिसे हम क्या बोलते हैं गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन इज द इंट्रासेलुलर जंक्शन, यहाँ हम क्या बोलते हैं दैट इज द इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल्स के बीच में जो है एक जंक्शन टाइप से है द अलाउ द पासेज ऑफ आयन एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स। तो ये क्या कर रहा है गैप जंक्शन क्या कर रहा है अलाउ द पासेज ऑफ आयन, आयन का पासेज हो सकता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पास हो सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेक्सस जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे गैप जंक्शन जो है वो इस प्रकार से है। तो इसकी क्या क्वालिटीज है देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट है बेसल पार्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोजा एटसेट्रा। तो यहाँ ये प्रेजेंट है। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ द टू हैवल्स इसके अंदर हैं, ईच हैवल्स बिलोंग टू वन ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। तो यहाँ पे क्या है दो इसमें हैवल्स प्रेजेंट यानी कि एक मान लो एक सेल्स और उसके कुछ पोर्शन है निकला हुआ बाहर, एक दूसरे सेल है उसका भी कुछ पोर्शन निकला हुआ बाहर, जो क्या हमें जिसे क्या बोलते हैं जंक्शंस फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन दोनों के बीच में हल्का सा स्पेस रहता है तो उनको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ द गैप। सो दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन। तो ईच हाफ ऑफ द चैनल इज सराउंडेड बाय द 6 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड द कॉनेक्शन और वी कैन से कॉनेक्शन। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो चैनल जो है सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन विच आर कॉल्ड कनेक्शंस और कनेक्शन। फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, फर्स्ट है डायमीटर ऑफ द चैनल इन द गैप जंक्शन इज अबाउट 1.5 to 3 nm जो है नैनोमीटर्स जो वी कैन से, तो ये डायमीटर इसका यहाँ पे है। सो द चैनल परमिट द पासेस ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड आयंस एंड अदर सब्सटेंस विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000। तो विच मॉलिक्यूल्स हैव वेट लेस देन 1000 can be passed from this type of the channels that is called gap junctions. Movement of the molecules can be from this type of channels. So इसका जो हम डायमीटर जो है 1.5 to 3 nm है और जो हम बात करें कौन कौन से परमिट हो सकते हैं ग्लूकोज है अमाइनो एसिड है आयंस एंड अदर सब्सटेंस विच कैन हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000। नेक्स्ट इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द केमिकल, तो केमिकल मैसेंजर जो है ये हेल्प कर रहा है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द केमिकल मैसेंजर बिटवीन द सेल्स वी कैन से। तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ द केमिकल मैसेंजर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट के हेल्प इन रैपिड द प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स लाइक द वी कैन से जैसे कि न्यूरॉन्स हैं उसमें वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो है जो प्रोपोगेशन होता है एक्शन पोटेंशियल्स का तो वो थ्रू द केमिकल मैसेंजर हो रहा है। तो वो केमिकल मैसेंजर जो है जो गैप जंक्शन के थ्रू क्या बहुत फास्टली ये ट्रांसफ़र होते हैं और द एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जिसे हम कह सकते हैं इट हेल्प इन रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जिसमें हम बात कर सकते हैं ये है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड टाइप जो है जंक्शंस का दैट इज़ द एंकरिंग जंक्शन। तो एंकरिंग जंक्शंस जो है वो क्या है, तो व्हाट इज़ द एंकरिंग जंक्शन, तो एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट। तो ये क्या है सेल को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जो सेल जंक्शन क्या है दे प्रोवाइडिंग द सपोर्ट स्ट्रेंथ और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन और होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ जो क्या है इट प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अटैचमेंट है दीज जंक्शंस प्रोवाइड द फ्रेम स्ट्रक्चरल अटैचमेंट बिटवीन द टू सेल्स और बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन के अंदर क्या एक सेल दूसरे सेल से अटैच है
विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ जंक्शंस, और जिसे हम क्या मैकेनिकल अटैचमेंट कह सकते हैं, और या एक सेल क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैचमेंट है, तो उस वे के भी हम क्या बोलते हैं एनकरिंग जंक्शन। तो एनकरिंग जंक्शन आगे सब डिवाइड किया गया है, तो लेट्स सी द कैसे इसको डिवाइड किया है एनकरिंग जंक्शंस को। तो anchoring junction are responsible for the structural integrity of the tissue and are present in the tissue like heart muscles and epidermis of the skin which are subject to serve mechanical stress। तो mechanical stress जो बियर करता है उसके लिए क्या है दिस टाइप ऑफ हम बात करें सेल जंक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एंकरिंग द सेल जंक्शन जो क्या कर रहे हैं tissue present in the skull tissue like the heart muscles and epidermis of the skin which are subject to serve the mechanical stress। The firm attachment between the two cells or the between a cell and the extracellular matrix is provided by either actin filaments or the intermediate filaments। तो यहाँ पे क्या है जो हम बात करें जो फ्रेम अटैचमेंट है बिटवीन द टू सेल्स, जो सेल एंकरिंग जंक्शन है दो सेल के बीच में अटैचमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट जिसे कैसे फ्रेम अटैचमेंट्स हैं, और बिटवीन द सेल एंड द सेलुलर मैट्रिक्स, या सेल के साथ अटैचमेंट या सेल और मैट्रिक्स के साथ अटैचमेंट है, प्रोवाइडेड बाय द आइदर एक्टिन फिलामेंट से और बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एंकरिंग जंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट में दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट, जो है एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट जो है वो जिसमें क्या एडेरेंस जंक्शन है सेल टू सेल, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज द एडेरेंस जंक्शन प्रेजेंट है। वहाँ जो फिलामेंट्स हैं जो अटैच है वन सेल टू अनदर सेल से, उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट है। सेकेंड क्या है फोकल एडेंस जो है फोकल एडेंस जो किस प्रकार से सेल टू मैट्रिक्स, एक सेल है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उससे क्या अटैच्ड है, तो उसको हम क्या वो भी एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू अटैचमेंट है उसका, दैट इज द फोकल अटैचमेंट वी कैन से। नेक्स्ट वन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट के अंदर क्या है डेस्मोसोम है जिसमें सेल टू सेल अटैचमेंट है, और हेमिडेस्मोसोम दैट इज कॉल्ड सेल टू मैट्रिक्स है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर क्या वन सेल अनदर सेल से अटैचमेंट है और उसमें फिलामेंट्स निकले हैं, वो क्या है अपने सेल को ही क्या है सपोर्ट देने का काम कर सकता है, या वी कैन से ये क्या है फैसिलिटेट कर रहा है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशंस को। तो जिसमें क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट जो है डेस्मोसोम है सेल टू सेल, और हेमिडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स हैं। तो किस प्रकार से देखो तो एडहेरेंस जंक्शन, next adherent junction is the cell to cell junction which connect the actin filaments of one cell to those of the another cell. In some place like epithelial linings this junction form as the communications adherence zonula adherence जो है just below the टाइट जंक्शंस। तो किस प्रकार से देखो इन एडेरेंट जंक्शन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड कैटरिन्स। तो कैटरिन्स इसके अंदर प्रोटीन्स है जो क्या है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है और ये प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसको हम क्या एडेरेंट जंक्शन जो मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल एंड हेल्ड टुगेदर बाय सम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कैटरिन्स। तो कैटरिन्स से ये होल्ड है और रखा है। सेकंड क्या है एडेरेंस जंक्शन प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट ऑफ द एडजेसेंट सेल, और ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या है एडेरेंस जंक्शन इज प्रेजेंट इन द इंटरकनेक्टेड डिश बिटवीन द ब्रांच ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो वहाँ प्रेजेंट है ये ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कार्डियक मसल फाइबर आर हेल्ड टुगेदर टाइटली बाय मीन्स ऑफ द जंक्शन। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रिलैक्सेशन हो रहा है दैट टाइम द कार्डियक मसल्स एक साथ काम कर रही हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हो चाहे रिलैक्सेशन कर रहा हो, तो किसके थ्रू हो रहा है दैट इज ड्यू टू द दिस एडेरेंस जंक्शंस की वजह से। द एडेरेंस जंक्शन प्रेजेंस इन एपिडर्मिस हेल्प टू स्किन टू विड्रॉल द मैकेनिकल स्ट्रेस। तो अगर कोई मैकेनिकल को स्ट्रेस है वो जो स्किन के ऊपर, तो ये जो एडेरेंस जंक्शन है ये सपोर्ट कर रहे हैं टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं स्किन को, तो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है ये। तो दीज आर द एडेरेंस जंक्शंस के बेनिफिट्स हैं या वी कैन से क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एडेरेंस जंक्शन जो है वो यहाँ पे। नेक्स्ट है फोकल एडेंस। द फोकल एडेंस जो है वो किस प्रकार फोकल एडेंसन इज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन विच कनेक्ट द एक्टिन फिलामेंट ऑफ द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ जो सेल किस प्रकार से कनेक्ट है विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्शन है यहाँ पे। तो एक्टिन फिलामेंट्स है यहाँ भी। तो इन एपिथेलियल ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स लाइक द जंक्शन कनेक्ट द सेल विद द
देयर बेसल लैमिना। तो बेसल लैमिना के साथ सेल का कनेक्शन, यहाँ सेल टू सेल कनेक्शन नहीं है आपस में, यहाँ क्या सेल टू बेसल मेम्ब्रेन जो है उससे कनेक्शन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच होल्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द इंटेग्रिन्स। तो यहाँ जो है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन उनको हम क्या बोले, इंटेग्रिन्स बोला। और जो हमने पहले डिस्कस किया है एडहेरेंस वाले के अंदर क्या कैटरिन्स जो हमने इसको बोला है, दैट इज द कैटरिन्स जो है वो प्रेजेंट है एडहेरेंस जंक्शन के अंदर। नेक्स्ट है डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम जंक्शन वो किस प्रकार, डेस्मोसोम इज द सेल टू सेल जंक्शन वेयर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, किस प्रकार से, डेस्मोसोम इज द सेल टू सेल जंक्शन वेयर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कनेक्ट द टू adjacent cell, or a desmosome is the called macula adherens, the membrane of two adjacent cell which oppose each other are thickened and become the support like पैचेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम मैकुला एडहेरेंस जो है किस प्रकार से, मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल, जो एडजेसेंट सेल जो हैं पास पास जो सेल प्रेजेंट हैं तो उनके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, अपोज साइड में ईच अदर आर थिकेंड एंड बिकम स्पॉट लाइक पैच प्रेजेंट है, ठीक है। और वो किस प्रकार से काम करते हैं देखिए आगे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अटैच विद द थिकेंड पैचेस। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं तो वो क्या है, अटैच हैं इन पैचेस के साथ। सम ऑफ दिस फिलामेंट्स आर पैरेलल टू द मेम्ब्रेन एंड अदर आर अरेंज इन रेडिएटिंग फैशन के अंदर। तो ये पैरेलल हैं या तो सेल मेम्ब्रेन के या क्या रेडिएटिंग फैशन के अंदर हैं। तो डेस्मोसोम फंक्शंस लाइक टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन की तरह काम कर रही हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डेस्मोसोम आर कॉल्ड मेनली कैडरिन्स, जिसे बोलते हैं वो है वो यही है। नेक्स्ट है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम इज द सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन विद कनेक्ट टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये कनेक्शन किस प्रकार से, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का विद द फिलामेंट्स का विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो सेल जंक्शंस हैं, मैट्रिक्स जंक्शंस हैं, जिसे कैसे सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो हैं विच कनेक्ट द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को ऑफ द सेल किस प्रकार से टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। दिस टाइप ऑफ सेलुलर जंक्शंस इज लाइक हाफ डेस्मोसोम है। तो डेस्मोसोम में क्या था, वन सेल टू अनदर सेल जो है कनेक्शन हो रहा था फिलामेंट्स का, ये बट कि यहाँ पे क्या है, एक साइड सेल प्रेजेंट है और नेक्स्ट साइड क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो उससे कनेक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड हेमी डेस्मोसोम। एंड दिस थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल अकर्स यहाँ पे, सो दिस इज नोन एज द हेमी डेस्मोसोम और हाफ डेस्मोसोम जिसे कह सकते हैं वो है। तो मोस्टली द हेमीडेस्मोसोम कनेक्ट द सेल विद देयर बेसल लैमिना। तो बेसल लैमिना के साथ ये कनेक्ट हो जाता है एट द बॉटम मेम्ब्रेन जो वैकेंट से लेयर जो है वहाँ, तो बेसल लैमिना के साथ। और द प्रोटीन इन्वॉल्व इन दिस एरिया द इंटेग्रिन्स। यहाँ कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स है वो कौन सा है, इंटेग्रिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आर द सेल एडेंस प्रोटीन्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सेल टू देयर नेबरिंग और द बेसल लैमिना। तो सर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ द सेल टू देयर नेबरिंग सेल, जो नेबरिंग सेल से अटैचमेंट करने के लिए, या हम कह सकते हैं बेसल लैमिना जो है हेमीडेस्मोसोम के अंदर जो होता है बेसल लैमिना से अटैच करने के लिए है। तो जो हम बात करें सेल एडेरेंट मॉलिक्यूल्स इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरसेलुलर कनेक्शन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एडेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे थ्रू क्या है हम रिस्पॉन्सिबल है, जो अटैचमेंट ऑफ द सेल टू द नेबरिंग सेल से अटैचमेंट होता चला जाता है, तो एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ सेल एडेरेंट मॉलिक्यूल्स ही है ये पॉसिबल हो पाया है। टाइप ऑफ द सेल एडेन मॉलिक्यूल्स, किस प्रकार के सेल एडेन मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन कैडरिन्स जो है विच आर द फॉर्म द मॉलिक्यूलर लिम्स बिटवीन द नेबरिंग सेल एंड दिस कैम सेल एडेन जंक्शन एंड डेस्मोसोम के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हमने देखा इंटेग्रिन्स। अभी इंटेग्रिन जो क्या था, विच आर फ्रॉम द फोकल एडेंस एंड हेमीडेस्मोसोम, तो हेमीडेस्मोसोम के साथ है। थर्ड है IgG सुपर फैमिली विच फॉर्म द सेल एडेंस मॉलिक्यूल्स इन नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम के में जो काम कर रहा है वो दैट इज द IgG फैमिली है। नेक्स्ट है सेलेक्टिन। सेलेक्टिन जो विच एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए रिसेप्टर क्या काम कर रहा है, लिगेंड और म्यूसिन्स एंड आर फाउंड इन प्लेटलेट्स एंड एंडोथीलियम। तो फाउंड कहाँ प्रेजेंट है ये, प्लेटलेट्स और एंडोथीलियम में। तो देर आर द 4 बेसिकली जो है जो कैडरिन्स, सेकंड इंटेग्रिन्स, थर्ड IgG सुपर फैमिली और नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिन्स जो है वो।
तो ये आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया। तो जस्ट नटसेल ऑफ दिस टॉपिक्स क्या है, नटसेल के अंदर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, सेल जंक्शन इज स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द सेल फ्रॉम वेयर द वन सेल इज कनेक्टेड टू द another cell or cell connected with the extracellular matrix. So this is called a cell junction. So basically cell junction provide the support to the membranes, we can say, and we can say it provide the intracellular communications and it maintain the homeostasis. It have the 5 type of normally cell junction. First one tight junction, second adherence junction, third desmosome junction, hemidesmosome junction, and last one is the gap junction. तो गैप जंक्शन मेनली दैट इज द ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल वी कैन से मूवमेंट्स या मॉलिक्यूल्स वी कैन से जिसे कह सकते हैं गैप जंक्शन के अंदर क्या है, एक्शन पोटेंशियल से जनरेट हो रहा है। टाइट जंक्शन ऐसा जंक्शन जिसमें क्या है, दे हैव द वेरी लेस चांसेस ऑफ द एक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द टाइट जंक्शन। तो इनर सेलुलर जो इनर केविटी ऑर्गन्स जो है जिनके अंदर क्या मेनली ये प्रेजेंट है, एंडोथेलियम लेयर्स के अंदर है। और एडेनेंट जंक्शन इट गिविंग द सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन जो है वो दे सकते हैं, उसको सपोर्ट देने काम कर रहा है। डेस्मोसोम एंड हेमिडेस्मोसोम आल्सो जो है इट गिविंग सपोर्ट्स एंड सम heavy molecule can exchange from this one. So overall this topic is completed about that cell junction. If any questions, any doubt related to this one, you can send the message on this chat box. So now this topic is completed. Okay, bye bye.